الدین الخالص. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشي إلى المسجد النافلة. رواہ مسلم. اب تک گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ لوگ اذان کے تعلق سے بیان سن رہے تھے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے یہ جو ندا دی جاتی ہے مسجد میں آنے کے لیے، اس ندا کے اندر، اس آواز کے اندر جسے ہم اذان کہتے ہیں، اس اذان میں کتنے فائدے اور کتنی برکتیں ہیں. اگر مسلمان ان نعمتوں کو، ان برکتوں کو حاصل کرنا چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر اس کا بیان کر دیا. وہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے آتی رہتی ہیں، وقتاً فوقتاً آپ لوگ ان سے آگاہ اور واقف ہیں. لیکن قصور ہم لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس سے غافل رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نوازنا چاہتا ہے، اپنی بھرپور نعمتیں، بھرپور احسان ہمارے اوپر لاد دینا چاہتا ہے تاکہ ہم اخروی زندگی کے اندر صاحب و خاطر نہ رہیں. اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے انعام جنت سے ہمیں سرفراز کرے. اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے اور وہ اس نے تمام تر سبیل اور راستے اس کے بنا رکھے ہیں مومنوں کے لیے، اپنے محبوب بندوں کے لیے. لیکن یہ انسان کی جانب سے، ہم سب کی جانب سے یہ کوتاہی اور بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں. آج سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو اذان کے بعد وضو کے تعلق سے، یعنی انسان وضو کرے. مومن کو ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے، باوضو ہو کے اسے نماز پڑھنی ہے. اس وضو کے اندر کتنی فضیلتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں، کیسی کیسی برکتیں اس کے اندر ہیں، اور اس کے مختلف قسم کے احکامات جو ہیں ان سب کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے اندر ملتا ہے. اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے تفصیل سے وضو اور تیمم کی بابت سورہ مائدہ کی 6 نمبر کی آیت کریمہ کے اندر پوری وضاحت کر دی ہے، اور مکمل تفصیل حدیثی کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر بیان اس کا ملتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. پھر اسی آیت کریمہ کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون. اس آیت کریمہ کے اندر اگر ہم غور کریں گے تو پائیں گے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے اوپر کس قدر مہربان ہے اور اپنی نعمتیں ہمارے اوپر کس انداز میں بھرپور طریقے سے نوازنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو شروع کیا مومنوں کو خطاب کر کے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے. معلوم ہی ہوگا کہ جو بات اللہ رب العالمین آگے کہنے جا رہا ہے، جو حکم اللہ رب العالمین دینے جا رہا ہے، اس کا تعلق ایمان سے. یعنی اگر ایمان میں سچے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس چیز کو ہمیں اپنانا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خطاب کیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے. معلوم یہ ہوا کہ اب جو بات کہی جا رہی ہے اسے دھیان سے انسان سنے اور اس کو برتے اگر وہ واقعی صاحب ایمان ہے تو. اللہ نے فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، یعنی اذان ہوئی ہے، اب تمہیں نماز پڑھنا ہے، نماز کے لیے اٹھنا ہے. تو جب نماز میں اٹھو فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھل لو اور اپنے ہاتھوں کو دھل لو کے تک. یعنی یہ جو وضو کا جو طریقہ ہے حدیث قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر کچھ اجمال کے ساتھ بیان ہے، اور تفصیلیں اور اس سے متعلق بہت سارے احکامات جو ہیں وہ حدیثوں کے اندر ملتے ہیں اور ان اس کا بیان کیا کرتے ہیں. اسی آیت کریمہ کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرے کہنے کا مقصد یہی ہے جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر، یعنی یہ طہارت کے تعلق سے آیت کریمہ ہے جس کے اندر وضو کا، طہارت کا اور تیمم کا بیان ہے. جس آیت کریمہ کو اللہ رب العالمین نے ختم کیا تو کس انداز میں ختم کیا؟ اللہ نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ رب العالمین یہ قطعاً نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی دقت اور پریشانی میں ڈالے. اللہ رب العالمین تمہیں تنگ کرنا نہیں چاہتا ہے. انسان کو وضو کرنا ہے، طہارت
शफाअत हासिल करनी है, इसलिए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए जा रहा है। जिस मकसद के लिए उसका वजूद हुआ इस दुनिया के अंदर, उस मकसद की खातिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए मस्जिद में आ रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने वो खड़े होने जा रहा है। तो उसके लिए वो बंदा वो तैयारी करेगा, अपने आप को उसके लिए आमादा करेगा, और उसके लिए जो जरूरी तैयारी है वो करेगा। और सबसे बड़ी तैयारी ये है कि इंसान वजू बनाए। तो अल्लाह ने फरमाया माँ अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर कोई तंगी का इरादा अल्लाह रब्बुल आलमीन का नहीं, वलाकिन युरीदु लिताहहिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चाहता है कि तुम्हें पाक साफ कर दे, यानी ज़ाहिरी तरीके से भी और बातनी तरीके से भी। ज़ाहिरी अगर कोई आलाइशें है तो इंसान उसे साफ कर ले और वुज़ू बनाकर मुकम्मल तरीके से वो तैयार हो जाए, और बातनी तरीके से भी कि नमाज के लिए इंसान जा रहा है, और नमाज का काम यह है कि इंसान को मासी से रोकती है, गुनाहों से इंसान को दूर रखती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इबादत के जरिए, नमाज के जरिए और नमाज के लिए वुज़ू बनाने से अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि तुम्हें पाक साफ कर दे, यानी ज़ाहिर तरीके से भी और बातिन तरीके से भी। गुनाहों से तुम्हारा नाता रहे, नजासत और खबासत से तुम दूर रहो, पूरी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रहो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे बनकर पाक साफ तरीके से रहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये भी चाहता है वलियुतिम्म निअमतहु, और तुम्हारे ऊपर अपनी नेमतें भरपूर तरीके से नाज़िल कर दे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि तुम्हारे ऊपर, तुम लोगों के ऊपर, तुम लोग जो ईमान लाए अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ईमान अल्लाह के सारे बंदे नहीं रखते। तो जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को ईमान रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर अपनी नेमतों का इत्माम चाहता है। एहसान तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर बंदे के ऊपर है और बेपाया एहसान है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन खासकर मोमिनों को भरपूर एहसान से नवाजना चाहता है, अपनी नेमतों का इत्माम करना चाहता है, भरपूर नेमतें उन्हें देना चाहता है। लअल्लकुम तशकुरून, इससे तुम लोग शुक्रगुजार बनो। यानी बंदे को जब इल्म होगा, दीन की बातें वो जानेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जब इरफान होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को पहचानने लगेगा, वो देखेगा कि किस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर मेहरबान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किस कदर नेमतें उसके ऊपर हैं, उसकी जिंदगी के ऊपर है। बेपाया नेमतें जब वो देखेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान उसका और मजबूत होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मोहब्बत मज़ीद बढ़ जाएगी। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत उसके दिल के अंदर बढ़ती चली जाएगी, इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के नवाजिश को, उसके एहसान, उसके करम को बराबर अपनी जिंदगी के अंदर देखता रहेगा, तो वो शुक्रगुजार बन के रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे उसके शुक्रगुजार बन के रहें। इसीलिए बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होता है, और खड़े होने से पहले वो वुज़ू बनाता है। तो वुज़ू की बाबत ये हदीस जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, इसके रावी हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु है, खलीफा सालिस, बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस अंदाज में वुज़ू करते हुए देखा जिस अंदाज में मैंने अभी अभी वुज़ू किया। उन्होंने वुज़ू किया और आसपास जो सहाबा या ताबीन मौजूद थे उनसे कहा कि देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ऐसा ही वुज़ू बनाते हुए देखा। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन तवद्दअ हकज़ा, जिसने इस अंदाज में, इस तरीके से वुज़ू किया, यानी मुकम्मल वुज़ू, यानी किसी चीज के अंदर कोई कमी नहीं। बात केनिया अगर छूट गई, उसके अंदर कहीं खुश्की रह गई, या पीछे टखनों के अंदर, पैर के अंदर पीछे कुछ कमी रह गई, जब हड़बड़ी में इंसान ने कहीं किसी चीज को अंदर अधूरा छोड़ दिया, ऐसा नहीं, बल्कि मुकम्मल अंदाज में वुज़ू किया। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्स ने इस वुज़ू की तरह मन तवद्दअ, जिसने इस तरह से वुज़ू किया, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जो उसके मुक़द्दम गुनाह है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ फरमा देता है। ये देखिए कि कितना बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है कि अभी इंसान ने नमाज नहीं पढ़ी है, इबादत के लिए वो हाजिर नहीं हुआ है, सिर्फ इबादत की तैयारी में वो लगा है और उसने वुज़ू बनाया। लेकिन वो वुज़ू भी चूंकि इबादत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत ये भी एक शक्ल है कि बंदा वुज़ू करता है, तो हम यूं ही खिलवाड़ में वुज़ू न करें, कोई जायद और इजाफी चीज को ना समझें कि ये कोई फालतू चीज है और हम इसके लिए कर रहे हैं, बल्कि वुज़ू को भी एक इबादत के अंदाज में लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताक़ुत की एक सूरत है, यानी कि इंसान के बंदे के अल्लाह रब्बुल आलमीन के तय इज़हारे जो उबूदियत है, इसकी इबादत का एक तरीका है, उसकी एक शक्ल, एक नौयत है, तो इसको भी हम उसी अंदाज में सीरियसली लें, पूरी संजीदगी से वुज़ू करें और मुकम्मल तरीके से वुज़ू करें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो उसके जो मुक़द्दम गुनाह है वो उसे
अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। और आपने मज़ीद फरमाया वकान सलातु मशहुल मस्जिद नाफिला, और उसकी जो नमाज है यानी वजू बनाने के बाद नमाज पढ़ेगा और घर से निकल के अपने ऑफिस से निकल के मस्जिद के अंदर वो आ रहा है, वो वहाँ उसका चलना हुआ, जो कदमों का बढ़ाना हुआ, ये सब के सब उसके लिए एक्स्ट्रा है, मजीद है, इजाफा है वो। यानी असल चीज तो नमाज है। नमाज का सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेपाया रखा है, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज भी कि उसके पहले जो वजू है उसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी नवाजिश है, लगता है कि असल चीज यही हो गई। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नवाजिश देखिए कि बंदा नमाज के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए वजू बना रहा है, वजू को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादत माना और फिर उसका इतना सवाब रख दिया कि इंसान के सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ कर देता है। वजू ये इतना जरूरी है कि वजू के बगैर इंसान की नमाज नहीं होती। इस सिलसिले में आप लोगों ने बारहा सुना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल साफ हदीस आती है, ला यक़बलु सलाता अहदिकुम इज़ा अहदथ हत्ता यतवद्दा। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे की नमाज को तब तक कबूल नहीं करता अगर वो हदस से है, यानी बेवजू है, तो जब तक बावजू ना हो जाए, वजू बना ना ले, तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी नमाज को कबूल नहीं करता, यानी इसकी नमाज होती नहीं इसी वजह से। और एक हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ततहहर फी बैतिही थुम्मा मशा इला बैति मिन बैतिल्लाह लियक़ी फरीदतन मिन फराइदिल्लाह कानत खुतवतहु इहदाहुमा तहुत्तु खतीअतन व उखरा तरफु दरजतन। रवाह मुस्लिम। सही मुस्लिम की हदीस है। इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने घर के अंदर वजू बनाए, यहाँ चीज और भी समझें कि घर के अंदर से वजू बना के आना ये मजीद फजीलत का बाइस है। इसी हदीस से इस चीज को हम समझ सकते हैं और कुछ हदीसें और भी मिलती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स अपने घर में वजू बना ले, फिर वो मस्जिद अल्लाह के घरों में से किसी घर की तरफ निकल पड़े, यानी मस्जिद के लिए, मस्जिद का इरादा हुआ कि अब जाना है, नमाज पढ़ना है, घर में उठा, घर में उसने वजू बना लिया, लियक़ी फरीदतन मिन फराइदिल्लाह, ताकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फराइद में से एक फरीदे को, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज़ें फर्ज की है तो एक नमाज उसे पढ़ना है, जिस नमाज का वक्त हुआ है उसके लिए वो उठा है कि मस्जिद में जाना है, तो उसके लिए वो उसने वजू बनाया कि फर्ज नमाज उनको अदा करनी। कानत खुतवतहु इहदाहुमा तहुत्तु खतीअतन, उसके दोनों कदम का मामला यह है कि एक कदम जब वो उठाता है तो एक गुनाह माफ होता है, और दूसरा कदम जब उठाता है तो एक दर्जा उसका जन्नत के अंदर एक दर्जा उसका मकाम बुलंद होता है। इसके अंदर एक से एक गुनाह का माफ होना और दूसरे से दर्जे का बुलंद होना मालूम होता है, लेकिन दूसरी हदीस बुखारी के अंदर मिलती है, उससे मालूम होता है कि एक कदम जो बढ़ाता है उसी से उसके एक दर्जा बुलंद होता है और एक गुनाह माफ होता है। उसके अंदर अल्फाज ये हैं, फ़इन्न अहदकुम यतवद्दा, तुम में से कोई शख्स वजू बनाता है, फ़अहसन वजू बनाया और बेहतरीन तरीके से, मुकम्मल तरीके से वजू बनाया और मस्जिद में हाजिर हुआ, ला युरीदु लिस्सलात, मस्जिद में हाजिर होने का मकसद उसका क्या था कि हम जाके नमाज पढ़ेंगे, तो वहां वो कोई एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी वजह से उसका एक दर्जा बुलंद करता है और उससे एक गुनाह को माफ करता है, हत्ता यदखुल मस्जिद, यहाँ तक कि वो मस्जिद तक पहुंच जाए। यानी हर इंसान घर से निकला है तो कदम बढ़ाएगा तभी वो मस्जिद तक पहुंचेगा। किसी का घर करीब होता है, किसी का दूर होता है। सहाबा किराम में बात सहाबा का घर दूर था, उनको खुशी थी इस बात की कि हमको मजीद सवाब मिल रहा है लेकिन हम दूर से आ रहे हैं। यहाँ चलने की बात है, यानी गाड़ी पर सवार होने की बात नहीं है। हदीस के अंदर ये अल्फाज मिलते हैं, मशा है या खत्ता है, यानी कदम को बढ़ाया, कदम को उठाया। इस चीज को भी हम समझें कि घर अगर थोड़ी दूरी पर है लेकिन हम चल के आ सकते हैं तो चल के आएंगे तो इसका बेहद सवाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज को बयान किया है। तो हम ये चीज समझें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज को फर्ज किया, नमाज के लिए हमको वजू बनाना है, ये भी फर्ज है। तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज में कितना सवाब रखा है। इसके पहले जो बातें अज़ान के ताल्लुक से हुई थी, आप लोगों को अंदाजा होगा कि शुरू से अखीर तक जो भी बात हम सुनते हैं सब के अंदर सवाब का, दर्जा के बुलंद होने का और माफी का मामला सामने आता है। तो ये इतना बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है कि उसने इस तरह की चीजों के अंदर अपने मोमिन बंदों के लिए सवाब रखा है। इस तरह की हदीसें कसरत वारिद हुई, हदीस के किताबों के अंदर बहुत सारी मिलती हैं जिसके अंदर फजीलत भी बयान की गई वजू का, और उसकी फजीलत के साथ साथ अहकाम भी मिलते हैं। तो आइंदा इंशाअल्लाह इसी सिलसिले की चंद बातें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान की जाती रहेंगी। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।